आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। शहर हैदराबाद में आज गणेश विसर्जन जुलूस निकाला जा रहा है, जिसके लिए पुलिस की जानिब से वसीतर बंदोबस्त किया गया है। जुलूस का आगाज़ सुबह 9 बजे हुआ। बड़ी बड़ी गाड़ियों में गणेश मूर्तियों को लेकर ले जाया गया। गणेश जुलूस को शोभा यात्रा का नाम दिया गया है। 21,000 से ज़्यादा पुलिस मुलाजिमीन को हिफाजती इंतजामात के लिए मुतय्यन किया गया है। 60,000 से ज़्यादा मूर्तियों का विसर्जन किया जा रहा है। सिक्योरिटी इंतजामात के तहत 1,000 से ज़्यादा CCTV कैमरों के जरिए जुलूस पर नज़र रखी जा रही है। जुलूस की रूट पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं। 24 मकामात पर गणेश विसर्जन के इंतजामात किए गए हैं। सिटी पुलिस के मुख्तलिफ शोबों के अलावा मरकजी नीम फौजी दस्तों की 9 कंपनियां भी इंतजामात पर मुतय्यन की गई हैं। मूर्तियों के विसर्जन के लिए कई क्रेन्स नस्ब की गई हैं। कई मकामात पर ट्रैफिक पर पाबंदियां लगाई गई। पुलिस ने आवाम से अपील की है कि वो ट्रैफिक की पाबंदियों की खिलाफ वर्जी ना करें। हैदराबाद के मशहूर बालापुर गणेश के लड्डू का इस मरतबा 18,90,000 रुपये में हर्राज हुआ। हर साल गणेश फेस्टिवल के मौके पर बालापुर गणेश के लड्डू का हर्राज होता है। श्रद्धालु इसको हासिल करने को अकीदत मानते हैं। जारिया साल ये लड्डू 21 किलो का बनाया गया था। इसके हर्राज में 19 अफराद ने हिस्सा लिया। ताहम शशांक रेड्डी ने इसको 18,90,000 रुपये की कामयाब बोली लगाते हुए हासिल किया। गुज़िश्ता साल कोविड की वजह से बालापुर गणेश उत्सव समिति ने उसका हर्राज नहीं किया था, जबकि साल 2019 में ये लड्डू 17,60,000 रुपये में हर्राज किया गया था। रियासती वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने हर्राज की तकरीब में शिरकत की। మహమ్మారి నుండి ఈ మానవ జాతిని బయటేయాలని భగవంతుని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఎలాంటి విఘ్నాలు రాకుండా ఈ రాష్ట్రం సుభిక్షంగా ఉండాలని భగవంతుని కోరుకుంటూ పోయిన సంవత్సరం మనం గణేష పండుగ కరోనా నిబంధనలను పాటించి చేసుకున్న సందర్భంలో బాలాపూర్ లడ్డు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారికి ఇచ్చిన మీకందరూ కూడా మరొకసారి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు. ఎందుకంటే రాష్ట్ర అధినేతకు అందించే ప్రయత్నం చేసిన మీ అందరికి కూడా మరొకసారి అభినందనలు తెలియజేసుకుంటూ రాజకీయాలు పక్కన పెట్టి ఈ ఉత్సవాన్ని పండుగ ప్రతిరోజు ఉదయం నుండి సాయంత్రం వరకు కూడా 9 రోజులు పండుగ వాతావరణంలో జరుపుకుంటున్న బాలాపూర్ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు, అభినందనలు తెలియజేస్తూ భవిష్యత్తులో కూడా ఇంకా బాధ్యతగా ఇంకా భక్తితో చేసుకునే కార్యక్రమం చేద్దాం. ఈరోజు రాష్ట్రంలో రైతన్నలకు కానీ దాంతోపాటు
ఉద్యోగ అవకాశాలు కావాల్సిన ప్రతి ఒక్కరికి ఉద్యోగ అవకాశాలు దొరికేటట్టు, రాష్ట్రానికి వెన్నువల పెట్టుబడులు వచ్చేటట్టు ఆ భగవంతుడు దీవించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా వారి జీవితాల్లో వారు కోరుకున్న కోరికలు నెరవేర్చేటట్టు, విఘ్నాలు లేకుండా ఈ రాష్ట్రాన్ని, దేశాన్ని, ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి పదవులు నడిపించేటట్టు దీవించాలని ఆ విఘ్న నాయకుడిని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మరొకసారి ప్రతి ఒక్కరికి కార్యక్రమంలో కింది స్థాయి నుండి పై వరకు పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్కరికి ఆ దేవదేవుడు ఆశీస్సులు ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాం। रियासती वजीर तलसरी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि गणेश विसर्जन के सिलसिले में मुनासिब इंतजाम किए गए हैं। तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिए जाने के बाद हर त्यौहार काफ़ी बेहतर अंदाज से मनाने वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने हिदायत दी है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो प्रार्थना करते हैं कि हर साल त्यौहार बेहतर अंदाज में रियासत में मनाए जाएँ। हुकूमत की जानिब से तमाम इंतजाम किए गए हैं। రోజులు, కొన్ని 7 రోజులు, కొన్ని 9 రోజులకు తీస్తారు. అయితే నవరాత్రులు చాలా బ్రహ్మాండంగా జరిగినాయి. అయితే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పాటు అయినప్పటి నుంచి 2014 నుంచి ఇప్పటి వరకు ఏ పండుగలు జరిగినా గొప్పగా జరగాలనేటువంటి సంకల్పంతోనే అన్ని కార్యక్రమాలు జరిగినాయి. రెండోది, ఖర్చు అనేది క్రైటీరియా కాకుండా ఎంత డబ్బైనా పర్వాలే మన ఉత్సవాలు బ్రహ్మాండంగా జరగాలని ఈ రోజు ఈ దేశమే కాదు ప్రపంచంలో కూడా మన సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు పెంపొందించాలని మీ యొక్క మీడియా ఛానల్ ద్వారా విశ్వవ్యాప్తం కూడా అయింది. అయితే ఈ రోజు అన్నిటికంటే ప్రధానమైనటువంటి వినాయకుడు ఖైరతాబాద్. ఈ ఖైరతాబాద్ విఘ్నేశ్వరుడు ఎక్కడ కూడా ప్రపంచంలో అంత పెద్ద వినాయకుడు ఉండడు. దానికి 48 గంటల ముందు నుంచే ఏమేమి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం జరిగింది. మేబీ ఇంకొక 40-45 నిమిషాల్లో ఆ వినాయకుడు కూడా ఇక్కడికి రావడం జరుగుతుంది. రెండోది ఈ క్రేను। तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस महेंद्र रेड्डी ने कहा है कि रियासत में आसानी के साथ गणेश मूर्तियों का विसर्जन किया जा रहा है। तमाम अजला और पुलिस कमिश्नरेट हुदूद के इलाकों में बगैर किसी रुकावट के विसर्जन जारी है। उन्होंने डीजीपी के दफ्तर से विसर्जन जुलूस का मायना किया। महेंद्र रेड्डी ने निशानदेही की कि इस मरतबा के जुलूस की खास बात यह है कि इस मरतबा टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। जगह जगह सीसीटीवी कैमरों के जरिए नज़र रखी जा रही है। पुलिस स्टेशन की सतह से लेकर जिला हेडक्वार्टर्स, कमिश्नरेट हेडक्वार्टर्स, जोनल डीसीपी ऑफिस, डीजीपी ऑफिस में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का क़याम अमल में लाया गया। इन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को एक दूसरे से जोड़ा गया। उन्होंने कहा कि तकरीबन 1.5 माह से तमाम अजला के पुलिस ओहदेदार, स्टाफ और दीगर के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए ताउन हासिल किया गया। उन्होंने कहा कि हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नरेट में तकरीबन 19,000 पुलिस फोर्सेस, 10,000 सैबराबाद और रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट में पुलिस मुलाजमीन को तैनात किया गया। पुलिस की टास्क फोर्स, आर्म रिजर्व, स्पेशल ब्रांच की टीमों के साथ साथ लोकल पुलिस भी इसमें शामिल है। तमाम तरह की पुलिस फोर्स को मिलाकर सेंट्रल सीएपी आरएफ का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। हर पुलिस स्टेशन में एक कमांड सेंटर के जरिए उस पुलिस स्टेशन के तमाम रूट्स के जुलूस पर नज़र रखी जा रही है। నిమజ్జన కార్యక్రమం చాలా ప్రశాంతంగా నడుస్తున్నది. అన్ని జిల్లాల్లో పోలీస్ కమిషనరేట్స్ ఏరియాల్లో ఈ గణేష్ నిమజ్జన కార్యక్రమం నిర్విఘ్నంగా కొనసాగుతుంది. అయితే ఈ సంవత్సరం స్పెషాలిటీ ఏంటంటే మనం రాష్ట్రం అంతా కూడా టెక్నాలజీతో దీన్ని మానిటర్ చేస్తూ అడుగడుగునా కూడా సీసీటీవీ కెమెరాల మీద, అట్లాగే కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ సెంటర్స్ పోలీస్ స్టేషన్ లెవెల్లో నుంచి
జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్స్లో, కమిషనరేట్ హెడ్ క్వార్టర్స్లో, జోనల్ డీసీపీ ఆఫీస్లో, అలాగే డీజీపీ ఆఫీస్లో, మళ్ళీ ప్రభుత్వం లెవెల్లో కూడా ఇవందరూ కూడా వీక్షించే విధంగా మనము ఇంటర్ కనెక్ట్ చేసి కమాండ్ సెంటర్స్ అంతా కూడా ఈరోజు మనం ముందుకు వెళ్తున్నాం. అయితే ఈ గణేష్ నిమజ్జన కార్యక్రమం ఇంత పెద్ద లెవెల్లో ఆర్గనైజ్ చేయాలి అంటే దీని వెనుక చాలా కష్టతరమైనటువంటి అరేంజ్మెంట్స్ మనం చేయడం జరిగింది. గత 1.5 monthsగా అన్ని कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने गणेश विसर्जन जुलूस का पुलिस कमांड एंड कंट्रोल रूम से जायजा लिया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि टैंक बंड एनटीआर मार्ग और पीवी मार्ग में आसानी के साथ मूर्तियों का विसर्जन किया जा रहा है। साउथ जोन बिलखुसूस चार मीनार के पास जुलूस की नकलो हरकत कुछ सुस्त रही। उन्होंने वाजे किया कि उनके अंदाजे के मुताबिक रात देर गए तक या फिर सुबह की अवलीन सातों तक विसर्जन का काम तकरीबन मुकम्मल हो जाएगा। आईटी सेल की जानिब से राजा वेंकट रेड्डी की क़यादत में विसर्जन की जाने वाली मूर्तियों की गिनती का काम किया जा रहा है। हर 10 मिनट में टैंक बंड एनटीआर मार्ग पीवीआर मार्ग में कितनी मूर्तियों का विसर्जन हुआ उसकी तादाद मालूम हो सकेगी। ये मालूमात डैशबोर्ड पर भी देखी जा रही हैं। कमांड एंड कंट्रोल रूम में तमाम सीनियर ओहदेदार बशमूल जीएचएमसी, आरएनबी, एचएमडीए, बिजली, फायर, सेहत के महकमेजात के ओहदेदार वहां पर मौजूद हैं जो फील्ड पर रहने वाले ओहदेदारों के साथ राब्ते में हैं। सूरत हाल का मुकम्मल जायज़ा लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पीवीआर मार्ग में पहली मरतबा विसर्जन किया जा रहा है, इससे विसर्जन के अमल में तेज़ी पैदा हो सकेगी। गुज़िश्ता साल के मुकाबले हर घंटा विसर्जन की जाने वाली मूर्तियों की तादाद में इजाफा हुआ है और ये अमल जारिया साल तेज़ी के साथ जारी है। बालापुर से हुसैन सागर की रूट पर तकरीबन 300 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। खैरताबाद के बड़े गणेश के लिए 80 था 85 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। तमाम मिलाकर तकरीबन 3.5 लाख कैमरे शहर में हैं जिनके ज़रिए जुलूस पर नज़र रखी जा रही है। ఇది డిలీట్ చేయండి, ఇది నాట్ రిక్వైర్డ్. Yes, sir. Please, sir. Once set అయిపోతుంది. Correct. Now don't touch mouse. Don't touch mouse. CP ऑपरेटर हाँ बैग CP ऑपरेटर ऑनलाइन इट इज रेडी and now play application గణేష్ ప్రొసెషన్ నిమజ్జనం కార్యక్రమం చాలా ప్రశాంతంగా జరుగుతుంది. నిన్న రాత్రి తర్వాత ఈరోజు ఉదయం ఎన్టీఆర్ మార్గ్, పీవీ మార్గ్, అప్పర్ ట్యాంక్ బండ్లో నిమజ్జనం ప్రాసెస్ చాలా అర్లీగా స్టార్ట్ అయింది. బాలాపూర్ గణేష్ లడ్డు ఆప్షన్ తర్వాత ఆల్రెడీ మూవ్మెంట్ జరుగుతుంది. ఇదే విధంగా ప్రెస్టీజియస్ బడా గణేష్ హైదరాబాద్ ఉదయం 5:30 నుంచి పూజ స్టార్ట్ అయింది. And by shifting from place to cluster vehicles, తర్వాత ప్రస్తుతం మూవ్మెంట్ కూడా జరుగుతుంది. तेलंगाना आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर वीसी सज्जनार ने गणेश मूर्ति के विसर्जन के लिए आरटीसी बस में सफ़र किया। सज्जनार को हाल ही में आरटीसी का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया। उन्होंने अपने अरकान ख़ानदान के साथ गणेश मूर्ति के विसर्जन के लिए बस में सफ़र किया। उनके बस में सफ़र की वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गई। अपने नए ओहदे की जिम्मेदारी संभालने के बाद सज्जनार ने अपनी शिनाख्त बताए बगैर बस स्टैंड का मायना किया था और बस में सफ़र किया था ताकि मुसाफिरीन को दरपेश मसाइल से वाकिफियत हासिल की जा सके। तेलंगाना के ज़िले आदिलाबाद की पुलिस ने WWF के सुपरस्टार खली को विनायक विसर्जन शोभा यात्रा में शिरकत की इजाज़त नहीं दी। पुलिस ने सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर उनको इस यात्रा में शिरकत की इजाज़त नहीं दी, जिस पर खली ने गणेश के मंडप में पूजा की और वहां से चले गए। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आदिलाबाद में आकर उनको बहुत खुशी हुई और यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं। उन्होंने साथ ही उनको जुलूस में शिरकत की इजाज़त ना देने पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि हुक्काम का काम आवाम की खिदमत करना और सिक्योरिटी फराहम करना है।
वजीर पंचायत राज व दही तरक्यात रवली दयाकर राव ने कहा है कि बीजेपी के कायदीन मरकज से फंड्स जारी करने के मामले में गलत बयान देते हुए अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अवाम इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ है कि गुज़िश्ता 7 वर्षों के दौरान तेलंगाना में हो रहे बड़े पैमाने पर तरक्याती और अवामी बहबूद के कामों में कौन सी हुकूमत फंड्स जारी कर रही है। उन्होंने आज पालाकुर्ती असेंबली हल्के में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए दयाकर राव ने कहा कि टीआरएस हुकूमत समाज के तमाम तबक़ात और मज़ाहिब की तरक्की और बहबूद के लिए काम कर रही है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव तरक्की के साथ अवामी बहबूद के कामों पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं, जिसकी वजह से आज तेलंगाना रियासत हर महाज में मुल्क की दीगर रियासतों के मुकाबले में सबसे आगे है। कोरोना वायरस की वबा के दौरान भी रियासत में तरक्याती काम जारी हैं और वबा के दौरान अवामी फलाही बहबूद के कामों को जारी और सारी रखा गया, जो चंद्रशेखर राव हुकूमत का बड़ा कारनामा है। उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए डबल बेडरूम के मकान तामीर किए जा रहे हैं, किसानों को 24 घंटे मुफ्त बरखी की सरबराही का अमल जारी है। इसके अलावा उन्हें हर साल कास्ट के अखराजात के तौर पर फी एकड़ 10,000 रुपये की माली इमदाद रैतु बंधु स्कीम के तहत दी जा रही है। और हालिया दिनों हुकूमत ने दलितों को माशी तौर पर मुस्तहकम करने और उन्हें खुद मुक्तफी बनाने के लिए दलित बंधु स्कीम को शुरू किया था। ये स्कीम फिलवक्त हुजूराबाद असेंबली हल्के में जारी है, जहां हुकूमत ने अब तक 2,000 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम जारी करते हुए कई हज़ार दलितों को फीकस 10 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम की है। ఈ కరోనా చేయబట్టి ఏందనేది కూడా ఒకసారి ప్రశ్నించుకోవాలి మీరందరూ కూడా. కరోనా చేయబట్టి రాష్ట్ర ఆదాయం, దేశ ఆదాయం, ప్రపంచ దేశాలన్నీ మునిగిపోయినాయి. ఆదాయం అంతా పడిపోయింది. ఆదాయం పడితే బయట రాష్ట్రాలలో కూడా ప్రభుత్వ స్కీమ్స్ అన్నీ కూడా బంద్ అయినాయి. నేను మొన్న కర్ణాటక పోయాను, బీదర్ పోయాను, మొన్ననే 15 రోజుల కింద బీదర్ పోయాను. ఆ బీదర్ పోయి ఒక ఇంట్లో పోయి అడిగాను, ఎంత పెన్షన్ వస్తుందా అని అడిగాను. 600 పెన్షన్ వస్తుందని గొప్ప చెప్తాను. 600 మళ్ళీ ఇంకా వచ్చిన తర్వాత 600 6 నెలల బట్టి ఇస్తలేరు. ఎందుకమ్మా అంటే కరోనా వచ్చింది కాబట్టి పైసలు బట్టి ఇస్తలేదు అన్నారు. అంటే కర్ణాటకలో ఒక ఇంటికి పోయారు, వాళ్ళు అప్పుడే పందులు తీసేస్తాను. ఏందమ్మా పందులు తీసేస్తానని అడిగితే నా బిడ్డ పెళ్లి చేసిన మొన్ననే అన్నది. ఏమైనా ప్రభుత్వం నుంచి డబ్బులు వచ్చినాయనంటే మా దగ్గర రూపాయి ఇయ్యాలన్నది, మా దగ్గర కళ్యాణ లక్ష్యం ఇస్తారంటే అవి ఎంత సంతోషపడ్డదంటే. वज़ीर अक़लियती बहबूद कुपला ईश्वर ने कहा है कि रियासत भर में कोरोना की टीका अंदाजी की खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत 18 साल मुकम्मिल करने वाले हर फर्द को टीका दिया जाएगा। अब तक रियासत भर में 2 करोड़ कोरोना के टीके दिए गए हैं। उन्होंने आज पेद्दापल्ली ज़िले के अहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करते हुए ज़िले में टीका अंदाजी के प्रोग्राम का जायज़ा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए कुपला ईश्वर ने कहा कि दही इलाकों में टीका अंदाजी के प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए मकामी अवामी मुंतखबा नुमाइंदों का मुकम्मल ताउन ज़रूरी है। कोरोना से तेलंगाना के अवाम को महफूज रखने के लिए रोज़ाना 3 लाख अफराद को टीके देने का मनसूबा तैयार करते हुए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने रियासत भर में टीका अंदाजी की खुसूसी मुहिम शुरू की है। उन्होंने कहा कि इस खुसूसी प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए ओहदेदारों के साथ अवामी नुमाइंदों को भी अहम रोल अदा करने की ज़रूरत है। उन्होंने ओहदेदारों और अवामी नुमाइंदों को तालमेल के साथ काम करते हुए हुकूमत के मुकर्ररा निशाने को हासिल करने का मशवरा दिया। वज़ीर अक़लियती बहबूद ने कहा कि टीका लेने के बाद कोरोना से मुतासिर होने के इम्कानात कम हो जाते हैं और वैक्सीन लेने के बाद कोरोना से मुतासिर होने पर भी जान जाने का कोई खदशा नहीं होता। इस बात की अवाम में बड़े पैमाने पर तशहीर की जाए। उन्होंने कहा कि पेद्दापल्ली ज़िले में हामिला ख़वातीन को भी कोरोना का टीका लेने की कामयाब तरगीब दी जाए और अवाम में टीके से मुतालिक पाए जाने वाले गलत फहमियों और शकूक को ख़त्म करने पर तवज्जो दी जाए। इस मौके पर ज़िला कलेक्टर पेद्दापल्ली संगीता सत्यनारायणा ने कहा कि 18 साल मुकम्मिल करने वाले हर फर्द को टीका देने के लिए 222 खुसूसी टीमें तश्कील दी गई, जिनमें 118 टीमें शहरी इलाकों में और 104 टीमें दही इलाकों में काम कर रही हैं। रियासत के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव को एक बार फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जानिब से मदऊ किया गया है। डावोस में 2022 में होने वाले WEF के इजलास में शिरकत करने के लिए WEF के प्रेसिडेंट बोर्गे ब्रांडे ने KTR को दावत दी। कॉन्फ्रेंस 17 से 21 जनवरी तक जारी रहेगी। बोरेज ब्रांडे ने तेलंगाना को टेक्नोलॉजी के मरकज़ में तब्दील करने के लिए KTR की कोशिशों की तारीफ़ की।
कबालियों की अराजियात और धरानी पोर्टल के मसाइल के खिलाफ रियासत की अपोजिशन जमातों ने 22 सितंबर को इंदिरा पार्क पर महाधरना देने का ऐलान किया है। कांग्रेस के दफ्तर गांधी भवन में कांग्रेस के अलावा सीपीएम, सीपीआई, जन समिति, सीपीआई-एमएल, न्यू डेमोक्रेसी, इंटी पार्टी के कायदीन ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि कौमी सतह पर गैर बीजेपी और रियासती सतह पर गैर टीआरएस जमातों को मुत्तहिद करते हुए मरकज़ और रियासती हुकूमतों की मुखालिफ अवाम पॉलिसियों, बिलखुसूस दलितों, गिरिजनों के साथ हो रही नाइंसाफ़ियों पर अवामी तहरीक शुरू की जाएगी। इस प्रोग्राम के तहत 22 सितंबर को इंदिरा पार्क पर महाधरना और उस दिन से 27 सितंबर तक बंद मनाने के भी प्रोग्रामों को खतियत दी जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी ने कहा कि अराजी तनाज़ात, हुसूल अराजी के मसाइल और धरानी वेबसाइट के मसाइल पर तमाम अपोजिशन जमातें मुत्तहिदा जद्दोजहद करेंगी। उन्होंने अवाम से ख्वाहिश की कि अपोजिशन के इस प्रोग्राम को कामयाब बनाएं। 27 सितंबर को भारत बंद मनाने का मंसूबा है। इस बंद को भी तमाम अपोजिशन जमातें कामयाब बनाएं। उन्होंने अपोजिशन जमातों को मशवरा दिया कि हैदराबाद के अतराफ़ की अहम शाहराहों को मुकम्मल तौर पर बंद करने के लिए हर शाहराह पर एक अहम क़यादत करे। उन्होंने कहा कि रियासत के 20 असम्बली हलकों में कबायली अफराद बरसों से जंगलाती अराजी पर कास्ट कर रहे हैं, लेकिन उन्हें हुनूस पट्टा नहीं दिया गया, जिसकी वजह से आए दिन कबायली अफराद और महकमे जंगलात के मुलाजिमीन में तसादुम के वाक़यात पेश आ रहे हैं, जिसके लिए चंद्रशेखर राव हुकूमत जिम्मेदार है। टीआरएस हुकूमत ने जंगलाती अराजियात पर पाए जाने वाले तनाज़े को ख़त्म करने के लिए कई बार वादा किया, ताहम अब तक इसको पूरा नहीं किया गया। टीजेएस के सदर प्रोफेसर कोदंडराम ने कहा कि बीजेपी और टीआरएस हुकूमतों की मुखालिफ अवाम पॉलिसियों के खिलाफ 22 सितंबर को महाधरना, 27 सितंबर को भारत बंद, 30 सितंबर को कलेक्टर्स को तहरीरी याददाश्त पेश की जाएगी और 5 अक्टूबर को कबायलियों की अराजियात के मसाइल पर रास्ता रोको एहतजाज किया जाएगा। अब बात कोरोना की। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में 35,160 अफराद के मायने यानी टेस्ट किए गए, जिनमें 173 मुस्बित पाए गए। इसी दौरान एक फ़र्द की मौत भी हुई। रियासत में फ़िलहाल 5,005 अफराद का कोरोना का इलाज चल रहा है। रियासती हुकूमत एक और बड़े प्रोग्राम को शुरू करने वाली है, जिसके तहत रियासत के हर फ़र्द की सेहत से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करते हुए उस शख्स का हेल्थ प्रोफाइल तैयार किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के तहत अक्टूबर से आवाम की हेल्थ प्रोफाइल को इकट्ठा करने का प्रोग्राम अजला, सिरसिला और मुल्क में शुरू करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में महकमे सेहत के अहदेदार मुकम्मल तौर पर तैयारी कर चुके हैं। महकमे सेहत के अहदेदारों ने बताया कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव रियासत के हर एक फ़र्द की सेहत से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करते हुए उसके डेटा को हेल्थ प्रोफाइल में महफूज करने का 2 साल कबल ही मंसूबा तैयार किए थे, ताकि रियासत के किसी भी शख्स की सेहत से मुताल्लिक़ हर एक मालूमात किसी भी मकाम पर देखी जा सके। जबकि वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्ब KT रामाराव भी रियासत के हर एक शहरी की हेल्थ प्रोफाइल की तैयारी में काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं। कई मरतबा KTR ने हुकूमत को इस तरह की तजवीज़ पेश की थी और उनके हल्के इंतखाब सिलसिला से इस प्रोग्राम को शुरू करने की भी ख्वाहिश की थी। KTR का कहना है कि हेल्थ प्रोफाइल पर मबनी इलाज यूरोप के एक छोटे से मुल्क एस्टोनिया में काफ़ी नताइज बरामद कर रहा है। आवाम को मियारी तिब्बी खिदमात फराहम करने के लिए एस्टोनिया में ई हेल्थ, ई एम्बुलेंस और ई प्रिस्क्रिप्शन पर अमल किया जाता है। उन्होंने बताया कि इस मुल्क में 99% आबादी का हेल्थ रिकॉर्ड डिजिटल शक्ल में मौजूद है। इस सिलसिले में KTR ने महकमे IT और सेहत के अहदेदारों को मशवरा भी दिया था कि वो एस्टोनिया में अमल होने वाली हेल्थ प्रोफाइल पर मबनी इलाज का मुताला करें। हेल्थ प्रोफाइल में हर शख्स का ब्लड प्रेशर, शुगर के अलावा तवील मुद्दती अमराज में मुब्तला बीमारियों की तफसीलात भी इंदराज की जाएंगी। अहदेदारों ने बताया कि अगर कोई दूर दराज इलाके का शख्स हैदराबाद सफ़र के दौरान हादसे में ज़ख्मी हो जाता है तो ऐसी सूरत में उस शख्स के नाम और पते के ज़रिए हेल्थ प्रोफाइल से उसकी पहले से मौजूद बीमारियों का पता चलाते हुए उसका इलाज किया जाएगा। हेल्थ प्रोफाइल में खून के ग्रुप का ताल्लुक भी दर्ज किया जाएगा, जिससे हादसे में ज़ख्मी होने वाले शख्स को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद पहुंचाने में किसी भी दवाखाने के डॉक्टरों को आसानी होगी। अहदेदारों ने बताया कि अक्टूबर से शुरू होने वाले 2 अजला के पायलट प्रोजेक्ट का काम 3 माह तक जारी रहेगा। 3 माह में 2 अजला के तमाम अफराद का हेल्थ प्रोफाइल हासिल करते हुए उसका डेटा तैयार किया जाएगा। महकमे सेहत को इस प्रोग्राम की अंजामदही के लिए महकमे IT की मदद मिल रही है। अहदेदारों ने बताया कि 2 अजला में पायलट प्रोजेक्ट की कामयाबी के बाद रियासत भर में इस प्रोग्राम को अंजाम देते हुए हर शख्स का हेल्थ प्रोफाइल तैयार किया जाएगा।
आंध्र प्रदेश में एमपीटीसी और जेडपीटीसी इंतखाबात के वोटों की गिनती का अमल आज सुबह से शुरू हुआ, जो रात देर गए तक जारी रहा। इन इंतखाबात में खुना जमात वाईएसआर कांग्रेस को हर जिले में भारी अक्सरियत से कामयाबी मिली है और अपोजिशन तेलुगुदेशम को हजीमत आमेज शिकस्त का सामना है। तेलुगुदेशम के कौमी सदर व साबिक चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू के हल्के असेंबली कुप्पम की कई एमपीटीसी सीटों पर हुक्मरान जमात वाईएसआर कांग्रेस के उम्मीदवारों ने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। अब तक की मौसूला इत्तलात के मुताबिक विशाखापट्टनम जिले में वाईएसआर कांग्रेस को 21 जेडपीटीसी और 277 एमपीटीसी की सीटों पर कामयाबी मिली, जबकि यहां से तेलुगुदेशम को 33 एमपीटीसी की सीटों पर कामयाबी मिली। शहर हैदराबाद के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। बारिश से मौजम जाही मार्केट, कोठी, आरटीसी क्रॉस रोड, सुल्तान बाजार और टैंकबंड इलाके मुतासिर हुए, जबकि गणेश शोभा यात्रा पर बारिश का खास असर नहीं पड़ा। बारिश में भी शोभा यात्रा जारी रही। गणेश की मूर्तियों को विसर्जन के लिए मुंतकिल किया जा रहा है। अब एक खबर आईपीएल से। चेन्नई और मुंबई के बीच खेले जा रहे मैच से आईपीएल 2021 फेज 2 का आगाज हो गया है। मैच की शुरुआत सीएसके यानी चेन्नई सुपर किंग्स के टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने के साथ हुई। अनफिट रोहित शर्मा की जगह किरोन पोलार्ड टीम की कप्तानी उन्होंने की। सीएसके ने 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 156 रन बनाए थे। मुंबई के सामने 157 रन का टारगेट था, लेकिन टीम 136 का स्कोर ही बना सकी 8 विकेट के नुकसान से, और सीएसके ने 20 रन से मैच जीतकर अपने नाम किया। इस जीत के साथ ही धोनी एंड कंपनी पॉइंट्स टेबल में 12 पॉइंट्स के साथ पहले पायदान पर पहुंच गई है। चेन्नई की जीत में ड्राविन ब्रोवो ने सबसे ज़्यादा 3 विकेट चटकाए हैं। अब देखते हैं कुछ मकामी खबरें। ज़िले नलगुंडा के कुटनगुर के करीब पेश आए सड़क हादसे में 4 अफराद हलाक हो गए। ये हादसा कुटनगुर मंडल के नवाही इलाके मोतिया ललमा गुडम में पेश आया। हैदराबाद से विजयवाड़ा जा रही एक तेज़ रफ्तार कार ने सड़क पर रुकी हुई लॉरी को टक्कर दे दी। इस हादसे में कार में सवार 4 मुसाफिर मौके पर ही दम तोड़ गए, जबकि 2 दीगर की हालत नाजुक बताई जा रही है। हैदराबाद के शमशाबाद के करीब कल रात कार में आग लग जाने के नतीजे में झुलसकर फौत हो जाने वाले शख्स की शिनाख्त हो गई है। वाज़ेह है कि कल रात आउटर रिंग रोड पर एक चलती कार अचानक शोलापोश हो गई थी, जिसकी वजह से कार में फंस जाने के नतीजे में कार में सवार शख्स जिंदा जल गया था। मरने वाले की शिनाख्त 39 साला डॉक्टर एन सुधीर की हैसियत से की गई है। महलूक का ताल्लुक रियासत आंध्र प्रदेश के अंगोल से बताया जा रहा है, जो हैदराबाद के मलकपेट में वाक़ यशोदा हॉस्पिटल के डॉक्टर बताए गए हैं। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।